Good morning, students. Today, our topic is electric current. What is electric current? Electric current is the time rate of flow of electric charge through any section of a conductor, is the measure of electric current. The time rate of flow of electric charge through any section of a conductor is the measure of electric current, and it is denoted by I. And the formula for the electric current is equals to total charge flowing divided by time taken. इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. यदि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है इसी कंडक्टर से टी टाइम में, तो आई हो जाएगी आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी. नाउ सिंस इफ क्यू इज इक्वल्स टू एनी, यदि Q इज इक्वल टू एनी है वेयर N एंड E आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली. N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है. तो I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी होगा. I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी. इफ चार्ज डी क्यू फ्लोज थ्रू ए वायर इज इन स्मॉल टाइम डी टी. If charge dq flows through a wire in small time dt, then I is equals to dq by dt. Electric current is a scalar quantity and its direction is always from positive to negative. So no need of mentioning direction with it. Electric current क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और ये करंट जो है, करंट की ये जो डायरेक्शन हम बताते हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है. The law of ordinary algebra is used to aid electric current. Unit of electric current. Electric current की यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर. इसकी जो SI यूनिट है वो एम्पियर होती है, और इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. If Q is equals to 1 coulomb and T is equal to 1 second, then I will be equal to 1 coulomb per second, or this will be equal to 1 ampere. Thus, if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then the current flowing through the conductor is said to be 1 ampere. यदि 1 coulomb चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर से 1 सेकेंड में, तो जो करंट फ्लो होगी कंडक्टर के थ्रू वो 1 एम्पियर होगी. नाउ करंट डेंसिटी J, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी and is represented by J. The current density at a point in a conductor is defined as the amount of current flowing per unit area of the conductor around that point. Current density at a point in a conductor is defined as the amount of current flowing per unit area of the current conductor around that point, provided that the area is held in a direction normal to the current. और इसके लिए यदि फॉर्मूला हम लिखें, इफ़ आई अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सरफेस हैविंग सरफेस एरिया एस, देन करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन एस. एंड करंट डेंसिटी जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन एस. यदि आई करंट फ्लो हो रही है सरफेस एरिया एस से, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन एस, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया. Similarly, if di amount of current is flowing through the area ds, then यदि di करंट फ्लो हो रही है ds एरिया से, तो j इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी एस हो जाएगा. j इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी एस, और डी आई इज इक्वल्स टू j इंटू डी एस. और यदि टोटल करंट हम निकालें तो इंटीग्रेट कर देंगे, i इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल j डॉट डी एस. और यदि n कैप यूनिट वेक्टर है, then the amount of current flowing through the whole surface is given by I is equals to surface integral j dot n cap ds. Since the current is measured in terms of ampere and area in terms of meter square, hence the unit of current density will be given by ampere per meter square. तो current density की जो यूनिट होगी, ऐसा यूनिट वो क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. The direction of J is along the direction of flow of positive charge, whereas the direction of electron is opposite to it, means the direction of electron always along minus J.
तो जे की डायरेक्शन किधर होती है, जे की डायरेक्शन जो है वो फ्लो पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन में ही होती है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है. सो इलेक्ट्रॉन मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अलोंग माइनस जे, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा माइनस जे के अलोंग होगी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी फील्ड्स यदि हैं तो वी नो दैट इफ J is the current density, then total current passed through a surface is given by I is equals to surface integral J dot ds. टोटल करंट हम देंगे I is equals to surface integral J dot ds से. If S is closed surface, then by definition of conservation of total charge or current passed through the surface, I is equals to surface integral J dot ds is equals to 0. If S is closed surface यदि है S, then by definition of conservation of charge, total charge और current passed through the surface, I is equals to surface integral J dot ds is equal to 0. I total current जो होगी वो 0 होगी. If you use divergence theorem, then we can convert the surface integral into volume integral and thus तो सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे. तो सरफेस इंटीग्रल J डॉट डी एस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे डी वी इज इक्वल्स टू 0. तो कंपेयर करेंगे तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेडी फील्ड. तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगी डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0. फॉर द वेरिंग फील्ड के लिए फाइंड आउट करेंगे. वी नो दैट चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द प्लेट ऑफ द कंडक्टर. व्हेन करंट इंक्रीजेज थ्रू द कंडक्टर, इट मीन्स चार्ज वेरीज विद द चेंज इन करंट. तो चार्ज जो है वो वेरी करेगा करंट चेंज होने के साथ ही. इफ रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंडक्टर की, देन सरफेस इंटीग्रल J डॉट डी एस इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी. और यहाँ नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है द चार्ज डिक्रीजेज विद द राइज इन टाइम, यानी टाइम के साथ जो है वो चार्ज डिक्रीज होगा. टाइम बढ़ने के साथ ही चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा. यही नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है. सो सरफेस इंटीग्रल J डॉट डी एस इज इक्वल्स टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डी रो बाई डी टी इंटू डी वी. सरफेस इंटीग्रल J डॉट डी एस इज इक्वल्स टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डी रो बाई डी टी इंटू डी वी. एंड यदि हम इसको सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डी रो बाई डी टी इंटू डी वी. और दोनों तरफ यदि कंपेयर करेंगे तो डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस डी रो बाई डी टी आ जाएगा. डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस डी रो बाई डी टी. और इक्वेशन 10 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स. टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट करती है.